यस। ओके, आगे लेक्चर था किसका? वितेश सर का। अच्छा, अभी खत्म हुआ? यस मैम। हाँ जी। Before 10 minutes. अच्छा, बिफोर 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू। Am I clearly audible, no? Please give me Yes. answer in the chat box. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, fine, fine. Thank you. Okay, let us start with today's session. In the last lecture, we have discussed about the syllabus part, and I have said you that I will start with the fifth unit, that is abstract algebra, right? So I'm just sharing my screen. Please let me know whether it is visible or not. Visible, ma'am. Okay, fine. Visible. Thank you. Visible. Thank you. Thank you. Yeah, so unit 5, that is abstract algebra, we are going to consider. We will start with the today. So what is its topic? So these topics are binary operations, composition table, or composite table, algebraic structure, groupoid, semi-group, monoid, order of the group and element, abelian group, subgroup, Lagrange's theorem, cyclic group, permutation group, right? So these are the outline of this fifth unit, that is abstract algebra, and today we will start with the binary operation first, and then we will see the algebraic structure. Okay, so first of all, let me consider the definition of binary operation. So the definition is, first of all, a binary operation, or you can say it is binary composition. So binary composition or binary operation on a non-empty set. Why we are considering the non-empty set? Because आपको ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन वर्ड मीन्स ये आपके बेसिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, या तो कोई अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ ऑपरेशन हो सकता है. That means it may be addition, subtraction, multiplication, division, or other kind of operation defined on the set. तो आपको अगर, if you want to perform an operation, you must need an element first. So that's why we are considering any non-empty set. So binary operation on a non-empty set is a mapping from A cross A to A. Why? So see, this has the domain as A cross A. A cross A means आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे वो नॉन एम्प्टी सेट में से. दैट्स व्हाई वी हैव डोमेन एज A cross A. So two elements will be considered from the set A cross A. To A, A is remains same in the codomain as well. So that is what the main definition comes here. Means आप जब भी कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हो, उसमें से दो element you are considering from the domain, apply any operation, you will again get the element in that set itself. That is, the codomain remains same as a set only. किसी भी दो नंबर लो, दो नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई करो, तो आपको उसका आउटकम जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद मिलना चाहिए, दैट हैज टू फॉल इन दैट सेट ओनली.
then it is called the binary operation. Let us see this mathematically. That suppose A and B are two elements in a set, then image Ma'am, can by, you keep your mic apart from you? sorry, It too much noise. you can adjust your volume, because some of you people will be hearing it very slowly, so I cannot do that. You can adjust your volume from your side. Okay. So then image of A comma B. A comma B, why I have taken, because here your domain is A cross A. So when you consider domain as A cross A, for example आप R cross R लेते हो तो उसके elements कैसे लिखते हो R2 के? It is with the ordered pair 1, 2, 2, 3 like that. So that's why since domain is A cross A, so element of it is A comma B, right? So suppose A and B are two elements of A, then image of A comma B under binary operation star. So we are denoting that operation as star. It may be your basic operation or any other. So it will denoted with the A star B and it has to be in A. मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट लिए ऑपरेशन अप्लाई किया, आपको वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आउटपुट जो मिल रहा है दैट हैज टू फॉल इन दैट सेट इटसेल्फ, then it is called the binary operation. For example, let me consider the set of natural number. Set of natural number means it is the set 1, 2, 3, 4, so and so on. So if you consider any of two elements of it and take the operation as addition, तो आपने किसी भी दो नंबर का एडिशन, नेचुरल नंबर का एडिशन ले लिया तो वो अगेन आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा. दैट मीन्स प्लस यहाँ पर a जो हो गया वो आपका n हो गया, प्लस जो हो गया वो आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया. सो आई कैन से n इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस, right? And what is algebraic structure? Algebraic structure is a non-empty set G we have taken with one or more binary operations. Means एक सेट के ऊपर आप एक भी डिफाइन कर सकते हो, एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हो, is called an algebraic structure. Means algebraic structure means एक आपको सेट चाहिए G और उसके साथ कोई भी at least one operation you will need और उसको आप जब parenthesis में लिखते हो तो that is called an algebraic structure. For example, as we have seen, दो natural number लिए, for example 5 and 10, एडिशन ले लिया ऑपरेशन तो एडिशन मिलेगा आपको 15. 15 is again in the natural number set. So n प्लस लिया है तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया और n प्लस जो हो गया that turns out to be your algebraic structure. 100 ले लो, 1000 ले लो, तो एडिशन जो मिलेगा वो अगेन एक नेचुरल नंबर ही होगा. सो n plus will become an algebraic structure. Are you clear about this definition? You can write it in your chat box. Okay. Only 2 people have commented. 3. Okay, fine. Slowly you are coming. If anyone has any doubt, they can unmute yourself and please let me know. Okay, so are you are clear about this definition? Fine. So now let us consider another example as Z plus, right? Roll number 5. कौन है? मैम नेटवर्क इशू. कौन है रोल नंबर 5? मैम नेटवर्क इशू हो रहा है. क्या नेटवर्क इशू हो रहा है? मैम क्लियर दिख नहीं रहा है मुझे. क्लियर दिख नहीं रहा है, सुनाई दे रहा है सब कुछ? यस मैम. ओके, आपको डेफिनेशन क्लियर हुई? हाँ मैम. नहीं ठीक से नहीं हुई है. ठीक से नहीं हुई मतलब क्या नहीं डिस्कस? मैंने जब आपका नाम लिया तब आपको पता चल रहा है कि आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई? यू कैन आई हैव आस्क्ड नो, you raise your question, then why you why? Ma'am, I was connecting from another device. So what is your confusion about the definition?
Ma'am, I was not able to see, so I was not able to understand it. आपने चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिखा फिर कि यू आर नॉट एबल टू सी? Sorry, ma'am. नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना प्लीज, Yes, क्योंकि ma'am. हर बार आपका नेटवर्क इशू का बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर. Yes, ma'am. रोल नंबर 6. यस मैम। हाँ जी, आपको दिख रहा है सब कुछ क्लियरली? स्क्रीन, हाँ हाँ ऑडियो सब कुछ? यस मैम। यस, so what I have asked? मैम कैन यू रिपीट वंस अगेन? क्यों सुन नहीं रहे थे आप? मैम सुन रहा था पर थोड़ा लिंक टूट थोड़ा गया। थोड़ा लिंक टूट गया। लिंक टूट गया? अच्छा, वेद भानुशाली के नेटवर्क इश्यू सुन के आपको सिंपैथी क्रिएट हुई और लिंक टूट गया आपका. हाँ, मेरा क्वेश्चन था z प्लस इज algebraic structure or not? यस। Why? चैट बॉक्स में यस लिखा है, बोलो बोलो. मैम नो आइडिया। नो आइडिया मतलब आप अटेंटिव नहीं हो. ये नहीं है भाई साहब कि लिख लिया साथ में आ गए आपके स्क्रीन के ऊपर और आपकी अटेंडेंस हो गई, यू आर डन. इट इज नॉट द केस. I have told you last time also, you have to be very attentive in this case, because it may happen that examination may be online, may be offline. Scenario is not now predicted. So इतना मत रहो भाई साहब लिबरल. सॉरी मैम। कौन है रोल नंबर 10? मैम। यस, रवि बताइए मैम। आपका आंसर क्या होगा? मैम जेड प्लस जी स्ट्रक्चर बिकॉज जेड प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा, कोई भी अपने हिसाब से 2 एलिमेंट ले लो अपने चॉइस के. हाँ जी, व्हाट कान हाँ जी, आपने क्या बोला मैम? मैंने ये कहा कि आप अपने हिसाब से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो z के. अरे भाई, अपने चॉइस के 2 इंटीजर्स बता दो मुझे. आपके रोल नंबर पे ही इंटीजर है 19 and 10. These 2 are integers. If you add them, you will again get the 29 number. You can also consider minus 19 and minus 10. So minus 29, it will again the integer. So therefore, if you consider any of 2 integers, if you add them, you will again get the integer only. कोई अलग तरीके का एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको. So addition with respect to z is binary operation, as well as can I say z comma plus is algebraic structure? Yes or no? सोते हुए पकड़े गए हो क्या? है नो मैम। तो बहुत खाना खा लिया है? नो मैम। वेद भानुशाली, अब आपको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. तो Yes. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Ma'am, pardon me. आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने क्या पूछा? No, ma'am. नो मैम. ओके, व्हाट अबाउट यू जैनिल? हम इंटीजर वो समझ में आया जेड प्लस पर 2 एलिमेंट्स लेके मतलब क्या एनी 2 एलिमेंट्स। देखो, ऑनलाइन क्लासेस में आपको देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना भी इम्पोर्टेंट है. आप 100% अगर नहीं सुनोगे, दिमाग में नहीं जाएगा, then you won't be able to understand the concepts. So mute yourself. And what am I saying is z with respect to addition is
an algebraic structure. क्यों? क्योंकि किसी भी algebraic structure के लिए पहले तो क्या होना चाहिए, आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. Z नॉन एम्प्टी सेट है, yes. आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन चेक करना पड़ेगा. बाइनरी ऑपरेशन चेक यहाँ पर आपके पास है एडिशन. एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कंसीडर 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द Z. तो कोई भी 2 एलिमेंट अगर आपने ले लिए Z में से, 2 एलिमेंट मतलब यहाँ पर हो जाएंगे वो इंटीजर्स. तो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो इंटीजर्स के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आने का चांसेस है? नो मैम. नो. No, ma'am. So Z plus will become an algebraic structure or not. Similarly, आप 2 रैशनल नंबर भी ले लोगे तो 2 रैशनल नंबर का एडिशन भी आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसीडर 1/2 and another number if I consider 1/3, तो उन दोनों का एडिशन जो होगा that is 1/6. 1/6 होगा ना? No, it won't be 1/6, it is 5/6. So 5/6 is again a rational number. दूसरा मैंने ले लिया 11/7 and कोई दूसरा एलिमेंट ले लो आपकी चॉइस का, फॉर एग्जाम्पल -1/2. तो इन दोनों का जब आप सॉल्यूशन लोगे तो इट विल अगेन अ रैशनल नंबर ओनली. यहाँ पे समथिंग होगा, यहाँ पे समथिंग होगा, तो इट विल बी ऑफ द काइंड रैशनल ओनली. सो Q प्लस विल बी ऑल्सो एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड R. किसी भी 2 रियल नंबर ले लिए, आपको एडिशन रियल नंबर ही मिलेगा, तो R प्लस विल बी अगेन एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो ये 4 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ है आइडिया कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन एंड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. वेद, आप अपने आप को म्यूट कर लेना प्लीज, अगर म्यूट नहीं हो तो. म्यूट हो तो देन इट्स फाइन. Okay, fine. Many of you have written yes, and then it's fine. So now my question is, what about n minus? कौन देगा इसका आंसर? रोल नंबर 20. कौन है रोल नंबर 20? यस मैम. यस. जी, क्या नाम है आपका? हार्द. हार्द. ओके. हार्द. यस. हाँ जी, बताइए. n माइनस होगा? n माइनस नहीं मैम. क्यों नहीं होगा? देखिए, क्योंकि अगर हम कुछ जस्ट अ मिनट हार्ड. अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए सही होना चाहिए, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होता है दैट मींस वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ कि जहां पे आपको 2 एलिमेंट मिल गए जिसका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है. नाउ यू कैन गिव द आंसर हार्ड. यस मैम. n माइनस में अगर हम n पहले 5 ले और फिर माइनस के लिए हम 3 ले तो 2 बार ही होगा ना, फिर माइनस में चला जाएगा, वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा. एक आपने 5 लिया और एक 3 लिया तो उसका सब्ट्रैक्शन तो 2 हुआ. 2 और फिर वापस 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा ना, वो नेचुरल नंबर नहीं रहेगा. तो मतलब आप फ्लिप करने को बोल रहे हो ना? 3 हाँ. ले लिया और अगर आप दूसरा एलिमेंट 5 लिया तो 3 - 5 तो आपको मिलेगा -2. -2 is not the part of the natural number, therefore n minus is not an algebraic structure. Are you getting, all of you? Yes ma'am. Yes. So now tell me what so this is not the algebraic structure. What about z minus? कौन देगा इसका आंसर? रुको मैं बताती हूँ. 25 नंबर. Yes ma'am. हाँ जी, धैर्य. मैम होगा. क्यों होगा? Yes. क्यों होगा? कोई भी 2 इंटीजर ले लो, उसका सब्ट्रैक्शन आपको अगेन इंटीजर ही मिलेगा. फॉर एग्जांपल ले लो एक -3 अभी जो बताया आपके फ्रेंड ने, और -5. तो सब्ट्रैक्शन लिया है, एक 5 लिया है, एक -3 लिया है. एलिमेंट्स आर नाउ 1 is 5 and 1 is -3, तो उनका सब्ट्रैक्शन होगा -8. अगर आप फ्लिप करते हो तो हो जाएगा एक -5 लिया था पहले, फ्लिप करते हो तो 5 माइनस ऑफ -3, सो इट विल बिकम 8. सो दैट इज आल्सो एन इंटीजर. आपने एक एलिमेंट 1 ले लिया, दूसरा एलिमेंट 1 ले लिया. मैंने कहाँ बोला है कि 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही लेने हैं आपको, राइट? सो 1 - 1 0. 0 is part of z, therefore it will be an. You can give this argument also for set of natural number कि वो नहीं होगा algebraic structure because 0 is not the element of n. But
as soon as you consider Z, it will become an algebraic structure for with respect to negative sign. What about Q and R both? Who will give the answer? Roll number 41. मैम क्यू में होगा। अमर, yes. 31 नहीं बोला मैंने, 41 बोला। फिर भी आप दे दीजिए, चलिए आंसर, आप आए ही हो तो। यस मैम, मैं आंसर की। हाँ दे दो, चलो भाविक जी दे रहे हैं आंसर। हाँ जी बोलिए। होगा मैम, होगा, हाँ जी। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लोगे आपको सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर ही मिलेगा, रियल नंबर ले लोगे तो रियल नंबर ही मिलेगा। दैट्स व्हाई Q with respect to subtraction, R with respect to subtraction will become algebraic structure, right? Mute yourself, please. Thank you. With respect to multiplication, N will become algebraic structure or not? I am saying yes, because कोई भी दो पॉजिटिव नंबर ले लिया आपने तो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको अगेन एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है, right? So N with respect to multiplication will become an algebraic structure. Z with respect to multiplication, तो कोई इंटीजर लेना, दो एलिमेंट लेना, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. वन पॉसिबिलिटी इज आइदर यू कंसीडर बोथ एज द नेगेटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और बोथ विल बी पॉजिटिव वन, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा इंटीजर. अगर आपका एक एलिमेंट 0 है, दूसरा नॉन 0 है, तो प्रोडक्ट अगेन इट विल बी 0. और थर्ड पॉसिबिलिटी इज एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है इंटीजर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटीजर ही होगा. दैट मींस Z with respect to multiplication is also an algebraic structure. Same thing I can say for Q and R or not, that Q and R both are closed under multiplication. Yes, please write the answer in the chat box. Yes, many of you are saying that Q and R with respect to multiplication will be algebraic structure. So my question is, now let us change our operation to division. And with respect to division will be an algebraic structure. This statement is true or false? Answer देंगे मुझे roll number 50. सिद्धराज, हाँ जी बताइए. यस, Will it become, रिपीट कीजिए आंसर मुझे। नेटवर्क इशू था ना? यस, यस. क्या हमने क्या डिस्कस किया लास्ट में? क्वेश्चन क्या पूछा वो? क्वेश्चन छोड़िए ना, आप हमने लास्ट में क्या डिस्कस किया वो बताइए. लास्ट में आपने क्यू और आर का With respect to, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि n with respect to division is algebraic structure. This statement is true or false? नो मैम। नो, क्यों नहीं है? नो है तो आप एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए, सिर्फ एक ही एग्जांपल काफी है. 1 by 1 by 2 plus 1 by 2। sorry, I can't hear you. Roll number 61. Roll number 61. Yes, ma'am. हाँ जी,
आपको क्वेश्चन सुनाई दिया था हाँ सुनाई दिया था आपका मैम। आंसर ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा, क्योंकि हम जब 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं हाँ जी तो आंसर 2 आता है। हाँ तो वो वेरी भी गुड वो भी एक अलजेब्रा स्ट्रक्चर हुआ। और हाँ हम 3 डिवाइडेड बाई 4 लिखते हैं हम्म तो वो नेशनल नंबर नहीं आएगा, हाँ तो नेचुरल नंबर नहीं आंसर क्या होगा आपका? आ, क्या- दोनों सोच रहा हूँ। सुनिए ध्यान से सुनिए, मैंने बिगिनिंग में ही बोला था कि अगर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए बाइनरी तो ऑपरेशन के फॉल्स अंदर होगा, क्लोज फॉल्स। होना चाहिए। अगर हाँ आपको एक ही ऐसा एग्जांपल मिल गया हाँ जहां पर वो होल्ड नहीं हो रहा है, देन इट इज हाँ नॉट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नाउ गिव मी हाँ योर आंसर। फॉल्स होगा। फॉल्स होगा ना? हाँ Everyone is getting that it will be a false statement that n with Yes. respect to division is not an algebraic structure. Same argument can I give it for z with respect to division? जो भी नेचुरल नंबर आपने लिए हैं वो z में फॉलो करने ही वाले हैं, और आप डिवीजन लोगे तो वो z के अंदर नहीं आने वाला है। फॉर एग्जांपल, एज योर फ्रेंड गिव द एग्जांपल 3/4, 3 is also an integer, 4 is also an integer, 3/4 डिवीजन लेने के बाद it won't fall in the set of integers, therefore z with respect to division is not an algebraic structure. So now my question is, q with respect to division will be an algebraic structure? 70 नंबर। यस मैम। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा? कौन बोल रहा है 70 नंबर का नाम? 70 नहीं, मैं 17 हूँ। 17 हो, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए आंसर। चलिए मैम क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? हम क्योंकि कोई भी हम क्यों क्यों कोई हम कोई भी लेंगे 2 नंबर, रैशनल नंबर। हाँ तो वो रैशनल ही आएगा। पक्का? हाँ श्योर हो? हाँ। अच्छा, एक अपनी चॉइस का नंबर बता दो, दूसरा मैं अपनी चॉइस का दे रही हूँ। 1/2। एक ही देना है आपको। आप रैशनल नंबर 1/2 दे रहे हो? हाँ ओके, और मेरे तरफ से दूसरा नंबर है 0। अब डिवीजन करो। 0 0 है ना क्यू में? नहीं होगा। 0 क्यू हाँ में है ठीक। ना? हाँ हाँ, तो 1/2 एक आपका एलिमेंट, 0 मेरा एलिमेंट, डिवीजन करो, क्या मिलेगा आपको? 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू 0 डिवीजन इज इनफाइनाइट। इज इट एलिमेंट ऑफ क्यू? इंफिनिटी इज द एलिमेंट ऑफ क्यू। हाँ हाँ, इनफाइनाइट है, क्यू का एलिमेंट है। तो हो गए ना, कोई भी रैशनल नंबर इनफाइनाइट तक जा ही सकता है ना। इनफाइनाइट तक जा सकता है या इनफाइनिटी को चेज करता है? तक जाता है और चेज करता है, बहुत डिफरेंस है। आपका 7.999 CGPA आया मीन्स यू आर चेजिंग टू 8, बट आप ये कभी नहीं बोल सकते कि मेरा 8 CGPA आया है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस। So infinity is not actually the part of Q. Actually infinity is not the part of R, और Q तो R का सबसेट है। R का ही एलिमेंट infinity नहीं है तो Q का तो हो ही नहीं सकता। Similarly, you can consider the negative rational number also. Once you divide it with 0, minus infinity will be the answer and it is not the part of Q. और 0 के अलावा कोई भी आप दो रैशनल नंबर लोगे, सभी के लिए क्वेश्चन है, 0 के अलावा कोई भी आप दो रैशनल नंबर लोगे तो डिवीजन क्यू में ही मिलेगा। ये बात सही है या नहीं है? राइट इन द चैट बॉक्स। मैंने 0 को अलावा बोला है। हाँ, जीरो के अलावा कोई भी दो एलिमेंट ले लिया आपने तो उन दोनों का डिवीजन क्यू में ही होगा। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। राज साहब ने लिखा है कि 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, व्हाट इट विल बी राज? 23 नंबर, अनम्यूट योरसेल्फ। 3 मैम। 3 is not in Q? No, it's in. है?
he is not in Q. मैम 3 को No, 3/1 लिख 3/1 क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा एक चीज बताइए मुझे, नेचुरल नंबर जो है वो Q का सबसेट है? N is a subset of Q, yes or no? यस तो yes. 3N में है तो वो Q में आएगा? नहीं. नहीं आएगा? भाई साहब आप मैथ्स कहाँ से पढ़ के आए हो? मैम मैम हाँ जी, हम अगर रैशनल सेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी ना, P by Q यस, P is equal to KQ where K is a some form of number. अगर हम किसी को P by Q फॉर्म में बता सकते हैं तो वो रैशनल नंबर कहेगा ना. हाँ, where P and Q आपका क्या होना चाहिए? It is in the set of, actually the rational number exact definition is P by Q where Q must not be equal to 0 and P and Q both has to be in the set of integers. हाँ Yes. हाँ, तो वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ना. आप हाँ. जीरो ला रही हो तो इट इज द आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर ना. मतलब आप ये बोल रहे हो कि 0 is not the element of Q. You are confusing between the set of rational number and element of rational number. मैम रैशनल नंबर अगर आप जीरो की बात करें तो जीरो इज द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, बट समथिंग बाय जीरो इज द नॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर. तो वो तो डेफिनेशन रैशनल नंबर की डेफिनेशन के बाहर ही है. रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं कि P by Q फॉर्म में हम बता सकते हैं. मेरी बात शांति से सुनो. रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि P सॉरी by मैम, Q. आवाज की वजह से. अच्छा मेरी आवाज शांति से सुनो. P by Q फॉर्म का एक रैशनल नंबर चाहिए आपको जहाँ पे Q हम 0 नहीं ले सकते, एनी ऑफ द इंटीजर ले सकते हैं, राइट? अभी 1 जो है वो रैशनल नंबर है? 0 जो है वो रैशनल नंबर है? हाँ है. अभी मुझे बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करना है? आई हैव टू कंसीडर एनी ऑफ 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द रैशनल नंबर. कैन आई कंसीडर 1 as one element and 0 as the another element? Yes ma'am. And can I take the division now? Okay, but yes, ma'am, yes. देखिए डिवीजन जो हमने डिफाइन किया है वहां हम नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डिवीजन में आप डिनोमिनेटर 0 नहीं ले सकते. रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हम लोग 0 को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वहां पे आप 0 नहीं ले सकते हो. दैट्स व्हाई इंफिनिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द Q. But right now in the binary operation we have not restricted our denominator. Okay ma'am. Are you getting the point clearly? Yes ma'am. Once? Yes ma'am. Okay. So Q में से 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट लोगे अगर आप तो उसका डिवीजन जो है वो अगेन एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. That is what the question is. और एक वेद जी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि 22/7. Yes. 22/7, that is you are considering it as a pi and pi is not the element of Q, right? Yes. irrational हो जाएगा. Actually 22/7 is not exactly the pi. It is approximation of the pi. We are when you write 22/7, if you remember, see, if I wanted to write down the 22/7 as a pi, I write this sign, not the equal to sign, because 22/7 is approximately equal to pi. It is not exact. Actually pi की exact value अभी तक किसी को नहीं मिली है. डेसिमल पॉइंट अभी भी रिसर्चर फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो 3.14 कहाँ तक जाएगा. अभी भी उनको मिल रहा है डिजिट्स. और अगर आपको देखना है तो आई विल सेंड यू द PDF फाइल. आई हैव 15 पेजेस ऑफ PDF फाइल एंड येट इट इज नॉट कंप्लीटेड. 3.14 के साथ उसके बाद डेसिमल पॉइंट्स 15 पॉइंट्स तक जा रहा है. पाई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है. सो 22/7 इज रैशनल नंबर ओनली. Okay ma'am. ओके, आर यू Yes. गेटिंग नाउ वेद? आप ही का था ना कमेंट? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, so 22/7 you are approximating it by pi, it is not pi. So 22/7 is rational number. लेकिन अगर आप फिर से उसको 0 से डिवाइड करोगे it won't be. So can I say Q with respect to division is not
algebraic structure. But if I eliminate 0 from Q, Q minus 0, will it become algebraic structure? Write in the chat box. Yes. Many of you have written yes. Very good. So now question is R with respect to division. Yes, yes. Q में से 0 को हटाना पड़ेगा तो वो algebraic structure हो जाएगा. What about R with respect to division? Roll number 101. कौन है 101? 95 तक ही है. अच्छा 95 तक ही है. Sorry. 85 number. यस मैम. हाँ जी. क्या नाम है आपका? संघवी. वेद. ओके. आंसर क्या होगा? R with respect to division algebraic structure होगा? नो मैम. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? वो 0 से करेंगे तो हाँ, सेम आर्ग्यूमेंट यू कैन गिव. जो Q के लिए दिया वही का वही आर्ग्यूमेंट अगर आप R के लिए दोगे तो इट वोंट बी एन algebraic structure. तो algebraic structure बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? R minus 0. Yes, R minus 0 with respect to division will be an algebraic structure. Very good. Thank you. Right? So now all of you must be clear about the binary operation as well as the algebraic structure. Right? So let us now consider another. किसी को डाउट है प्लीज? डाउट है तो आप अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए बाइनरी ऑपरेशन और algebraic स्ट्रक्चर का. नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे फॉरवर्ड कर रही हूँ. ओके. किसी को आप स्कूल लेवल पे मॉड्यूलो क्लास पढ़ चुके हो, राइट? याद है किसी को मॉड्यूलो क्लास क्या था? मॉड्यूलो जो आप पढ़े हो वो क्या था? Anyone can give me the answer? Yes, one. जो रिमाइंडर रहता है उसे मॉड्यूलो कहते हैं. मतलब हाँ जी. वेरी गुड. दो नंबर का डिवीजन करके जो रिमाइंडर हमें मिलता है ना तो उसे मॉड्यूलो फंक्शन मतलब कहते थे ऐसा. अच्छा. ओके. और किसी को कुछ कहना है, इसको एलाबोरेट करना है? गुड, यू आर एट द पॉइंट. और कोई कहना चाहेगा अपने आप से विलिंगली कि मॉड्यूलो क्लास क्या है? आई एम गोइंग टू रिवाइज इट, डोंट वरी, बट इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी आइडिया देन लेट मी नो. Okay, so now I am sharing paint screen. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Okay, fine. So मॉड्यूलो क्लास के लिए आपको याद होगा तो आपने एक नंबर लिया था, नेचुरल नंबर, और उसके बाद एक सेट लिया था Zn. जो Zn आपका सेट था वो कहाँ तक जाता था? तो इट विल बी फ्रॉम 0, 1, 2, इट विल गोज अप टू n-1 इफ यू रिमेंबर. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 ले लिया, Z6, देन इट विल बी 0, 1, 2 अप टू 6 - 1 दैट इज 5. तो वो 0 to 5 नंबर तक जाएगा. और जो मॉड्यूलो क्लास है वो हमने कैसे डिफाइन किया था? तो जब A और B हमने दो नंबर ले लिए और कोई ऑपरेशन ले लिया, सपोज इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन आप ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसिडर एडिशन. सो एडिशन मॉड्यूलो n is denoted with this sign, and multiplication either you write it with dot or you can write a star. So this is the multiplication modulo n and this is addition modulo n. So addition modulo n with two elements a and b क्या है? तो it is the least non-negative remainder. It is the least non-negative remainder when n divides a plus b.
नॉन नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए मुझे, ओके, और वो लीस्ट होना चाहिए. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n क्या होगा, तो व्हेन n डिवाइड्स multiplication a into b, that is what you have seen. So let us consider the specific example. If I consider n is equal to 3, suppose. So when I consider n is equal to 3, what will be my set Z3? So Z3 will become, please bear with my example because I am writing with mouse. So it is 0, 1, comma, it will go up to 3 minus 1 only. So 3 minus 1, that is, it is 2. So Z3. And now I am considering the operation as addition modulo 3. So what I have to do, I have to construct a table. तो ये आपका जो है एक ऑपरेशन हो गया, वो आपके बेसिक ऑपरेशन नहीं है अभी. एडिशन मॉड्यूलो 3 is one kind of operation which is not the basic operation. Basic operation means जो आप standard operation ले रहे हो, plus minus multiplication and division. So this is not an basic operation. So for that I will construct a table. Okay, first one is for addition modulo 0, 1 and 2. This is for addition modulo 0, 1 and 2. Okay, so here I will write the notation for operation, that is addition modulo n. Here n is 3. So the element from the set, that is 0, 1 and 2 here, and here also 0, 1 and 2. Now what will be the outcome when you apply element wise, the first column will be 0, here 1, and this must be 2. Sorry for this one. So 0, 1 and 2, let me erase it, otherwise you will get confused. So 0, 1 and 2. Okay, so now we want to see whether this will become an binary operation or not. Binary operation के लिए क्या होना चाहिए कि दो एलिमेंट के आप वो ऑपरेशन के विथ रिस्पेक्ट में आपका एलिमेंट वही सेट में फॉल करना चाहिए. दैट मीन्स जो भी यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलता है आफ्टर अप्लाइंग एडिशन मॉड्यूलो 3, दैट हैज टू फॉल इन द सेट 0, 1 and 2, right? Okay, so now first of all, this element I am going to fill. So how it will be filled up? Corresponding row and corresponding column. So it is 0 plus 0, that is 0. And when it divide with respect to 3, तो आपका रिमाइंडर क्या बचता है? तो जब आप 0 को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 ही बचेगा, right? Then this element I will ask, then it is 0, corresponding column is 1. So addition is 0 plus 1, 1. And when you divide 1 with respect to 3, remainder will be 1 only because it is not divisible by 3. Similarly, this element will be 0, corresponding column 2. So 3 होगा तो आपका remainder 2 ही बचेगा. That's why the answer 2. Same elements will come over here because first column and first row will remain as it is. Now let us come to this element. This is corresponding row, second row and third column. Sorry, third row and third column. So it is 1 plus 1, 2 divided by 2, remainder will be 2. Here last column and here third row. So it is 1 plus 2, that is 3. When 3 is divided by 3, remainder will be 0, right? 3 is divisible by 3, so remainder will be 0. Here corresponding row entry 2, column entry 1. So 1 plus 2, that is 3. 3 divided by 3, remainder entry will be 0. And last column is 2 plus 2, that is 4. When 4 is divided by 3, remainder will be 1, right? So 1 is the remainder. Now check the all corresponding 9 entries. Is there any element different from the set 0, 1 and 2? No, all the elements are either 0 or 1 or 2. That means, can I say addition modulo 3 is the binary operation, and the structure Z3 with respect to addition modulo
3 is an algebraic structure? Yes or no? Give the answer in the chat box. Many of you are saying yes. तो एडिशन मॉड्यूलो 3 विथ रिस्पेक्ट, तो मतलब कि आपको अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऑपरेशन वर्ड हमने यूज किया, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही हो. इट मे बी पॉसिबल दैट योर ऑपरेशन स्ट्रक्चर may gets different. So this is the operation, and in fact it is a binary operation. This is your non-empty set. So non-empty set together with the binary operation, so this is called an algebraic structure. So today the definition about the binary operation and algebraic structure will get clear to all of you. Am I right? Please write in the chat box. Yes. Okay. So today, what is your homework? Your homework is you check for Z7 with respect to multiplication modulo 7. मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो मीन्स यहाँ पे जो मैंने ट्रेबल ड्रॉ, पहले तो आपके z के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? इट विल गो अप टू 0 टू 7 - 1, दैट इज इट विल गो अप टू 6. तो आपका यहाँ पे 0 1 2 अप टू 6 तक जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7, और उसके करस्पॉन्डिंग जब आप मल्टीप्लीकेशन लोगे 0 × 0 तो 0 रिमाइंडर आएगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आपको टेबल में लिखना है. तो दैट इज व्हाट योर होमवर्क इज. चेक वेदर दिस इज algebraic structure or not. You can check for Z3 with respect to multiplication as well. तो आपको ये चेक करना है आज होमवर्क में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में ज्यादा देखेंगे. एंड दिस टेबल इज कॉल्ड द कंपोजिशन टेबल. ओके, दिस टेबल इज कॉल्ड द कंपोजिशन टेबल. अभी किसको डाउट है? किसी को डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके आपको, और अगर डाउट नहीं है देन यू कैन लीव द मीटिंग. just a minute before leaving the meeting. Yeah, now you can leave the meeting. डाउट है वो रुक के पूछ सकते हैं, बाकी आप जा सकते हो. हेलो मैम. हेलो. हाँ सृष्टि बोलिए. सृष्टि बोल रहे हो ना? मैम कैन यू एक्सप्लेन द वो फोर्थ रो और थर्ड कॉलम रिमाइंडर उसका जीरो कैसे हुआ? थर्ड रो, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम. फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये यस. हाँ. ओके. तो एंट्री कौन कौन सी हुई? इट इज 1 और 2. तो उन दोनों का एडिशन क्या? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, नाउ इज इट विजिबल? यस मैम. यस. ओके, आपका क्वेश्चन था थर्ड रो, फोर्थ रो थर्ड कॉलम. फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये वाला. यस यस मैम. ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? दैट इज 2 and 1. यस. तो एडिशन हुआ उसका 3. यस. 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? आप सोच रहे हो 3 डिवाइडेड बाय 3 तो 1 होगा. दैट इज द क्वोटिएंट. यस यस. वी आर एक्चुअली राइटिंग हियर रिमाइंडर. ओके ओके, थैंक यू मैम. या वेलकम. मैम हाँ जी. अगर कौन एनी है? रैंडम राज राज हाँ बोलिए राज. एनी रैंडम सेट दे दिया जाए और उसके एलिमेंट्स हमें पता नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आएगा? यानी प्लस साइन वैल्यू दी. रैंडम एलिमेंट मतलब? रैंडम सेट एलिमेंट, और हमें पता नहीं वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी.
ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ना अलजेब्रिक हाँ स्ट्रक्चर के हाँ लिए। हाँ 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 ऑफ कोर्स इट हैज टू बी नॉन एम्प्टी। हाँ तो हमें पता ही नहीं है कि सेट के एलिमेंट्स क्या है, अगर सेट दे दिया जाए तो। एलिमेंट ही पता नहीं होगे तो आप करोगे क्या सेट का? एनी सेट एलिमेंट्स हमें फाइनली मींस ऑल एलिमेंट्स नहीं पता, ऐसे इक्वेशन दे दिया जाए और ऐसा कुछ। इक्वेशन मतलब इक्वेशन क्या होगा? मैं आपका स्ट्रक्चर ही नहीं समझ पा रही हूँ, आप कौन से कैसे सेट का स्ट्रक्चर ले रहे हो? मींस एलिमेंट्स जो सेट के वो સેટિસ્ફાઈ કરતા હોય બોલો, કઈ ઇક્વેશન વાંધો નહીં, ગુજરાતીમાં બોલો. મેં ગમે તે એલિમેન્ટ્સ હોય એ સેટ ના એલિમેન્ટ્સ હોય કન્ડિશન દીધી કે આ સેટ ના એલિમેન્ટ્સ આ ઇક્વેશન આ સેટિસ્ફાઈ કરે છે આ કન્ડિશન્સ બધી, હા તો આપણને બધા એલિમેન્ટ્સ એક્ઝેક્ટ નહીં ખબર હોય, ફાઇન્ડ કરવા પડશે બધા એલિમેન્ટ્સ ઈ સેટના. હા 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 સોલ્યુશન્સ તમારે ફાઇન્ડ કરવા પડશે જે ઇક્વેશન બધા સોલ્વ કરતા હોય. હા અને આપણને પછી ગમે તે એની અલ્જેબ્રિક સાઇન દઈ દીધી હોય પ્લસ ઓર માઇનસ. ઓકે તો તમારી પાસે તમે કહેવા એમ માંગો છો કે યુ હેવ ગિવન ધ સિસ્ટમ ઓફ ઇક્વેશન્સ ઇન યોર સેટ અને એના સોલ્યુશન્સ સી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સોલ્યુશન ઓફ યોર करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस. तो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे तो आपको एक एलिमेंट्स मिलेंगे सेट में, तो दैट इज योर सेट इज नाउ. एलिमेंट मिल गए और फिर आप एडिशन करके बता सकते हो कि वो एलिमेंट अंदर है या नहीं है, चेक कर सकते हो. अगर वो फाइनाइट सेट हो यू कैन इजीली चेक. हाँ अगर वो फाइनाइट ही नहीं हो तो फाइनाइट नहीं हो तो फाइनाइट फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है जहां तक वहां तक आप जो आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आप उसकी तरफ जा रहे हो. एम आई राइट? यस मैम. यस. तो अगर आपको याद हो तो आपका जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता था तो आप उसको एक फॉर्म में लिख सकते थे. फॉर एग्जांपल उसको 3 वेक्टर की तरह देखा है आपने, तो फॉर एग्जांपल एक k होता था, फिर y एलिमेंट को आप k के टर्म्स में लिखते थे और थर्ड एलिमेंट जो भी था x y z. यस. तो अगर आपका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसका जो भी एडिशन ले रहे हो तो आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट मी कंसीडर द स्पेसिफिक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपका सॉल्यूशन मिला इनफाइनाइटली मेनी में 1 देन 2k एंड k. मैम स्क्रीन में लिख रहे हो? ना मैं स्क्रीन में नहीं लिख रही हूँ. लेट मी राइट इन द स्क्रीन, जस्ट वेट. Screen is visible now? Yeah. Yes. So now let me consider one specific example that where I am taking it as 1 comma 2k comma k as the infinitely many solution where k is belongs to z. Right? ये इस तरीका क्या सपोज आपके पास सेट है, राइट? फॉर एग्जांपल इसको आपको चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेट में से आप एलिमेंट लोगे तो कैन आई से इट विल बी ऑफ द फॉर्म 1 comma 2k1 कॉमा k इंटीजर है, k1 भी इंटीजर ही होगा. कैन आई से इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म वेयर k1 इज एनी इंटीजर. और सेकंड नंबर मैंने ले लिया, इट विल बी ऑफ द फॉर्म 1 comma 2k2 comma k2. तो ये दो एलिमेंट ले लिए आपने सेट में से, वहां जहां k1 k2 दोनों क्या है, इंटीजर है. अभी आप बोल रहे हो कि मुझे ऑपरेशन लेना है प्लस, राइट? तो प्लस जैसे ही लिया तो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 2, देन इट विल बी 2 into k1 plus k2 and the last element will be, sorry this is not the plus sign, it is comma sign, and k1 plus k2 parenthesis complete. Now the question is whether it will belong to the set this one A or not. Let me call this set as A, right? Okay. A set के अंदर रहने के लिए एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है that has to be 1 only, whereas here you are getting it as 2. समझ में आ रही है आपको बात कि A में कैसे एलिमेंट है कि जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है 2, तो this will not be the
binary operation with respect to the set A. Are you getting it clear? दो see second तो आपका हो जाएगा k1 इंटीजर है k2 इंटीजर है तो k1 plus k2 will be इंटीजर होगा और वो 2k1 टाइप हो जाएगा. This is will be also the integer, but first coordinate will not fall in this case. Therefore, this won't be the binary operation. Is your answer question clear about by this example now? Yes. Okay. अगर ये वन की जगह 0 होता तो सेटिस्फाई होता ना? Yes. If it is a 0, then it will be satisfied. Not only 0, but if you see, let me just show you. Not only 0, अगर यहाँ पर आपने प्लस लिया ना, उसकी जगह अगर मल्टीप्लिकेशन ले लिया होता ना, तो 1 into 1, that will become 1. तो वो 1 भी हो जाता. अगर मल्टीप्लिकेशन मीन्स जैसे ही आपका ऑपरेशन चेंज होता है तो बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन भी चेंज होता जाएगा. आर यू गेटिंग नाउ? यस मैम. उसमें k1 into k2 भी इंटीजर होगा, 2k1 into 2k2 भी इंटीजर, 2k1 k2 टाइप का हो जाता और 1 का 1 ही रहता. तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाता बट एडिशन के लिए नहीं होता. ओके. और आपका जो था आंसर कि वो 0 होता तो वो 0 भी हो जाता बाइनरी ऑपरेशन, राइट? वो नेचुरल और रेशनल के एलिमेंट्स हमें सब पता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है या नहीं. अगर ऐसा ही कोई इक्वेशन मिल जाए तो नहीं कह सकते. हाँ, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वेदर इट इज अलजेब्रिक, लिख के सॉल्व करना पड़ेगा कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, राइट? यही क्वेश्चन था मैं. ओके, फाइन. ओके, थैंक यू मैम. या वेलकम. Any doubt to anyone?